کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ دریائے سندھ سے 6 نئی کنالز کے معاملے سے ملک اور سندھ بھر کی طرح سکھر میں بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ بھر کی وکلا برادری کی جانب سے ببرلو قومی شاہراہ پر احتجاجی دھرنا 5ویں رکن میں داخل ہو گیا۔ سندھ پنجاب بلوچستان ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں سکھر سے شہناز منگی۔ دریائے سندھ سے 6 نئے کینالز نکالنے کے خلاف وکلا برادری کی جانب سے 2 روز سے ببرلو بائی پاس قومی شاہراہ پر دھرنا دیا ہوا ہے۔ دھرنے کے باعث سندھ پنجاب بلوچستان کی ٹریفک معطل ہے۔ آئے شرکا سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے۔ تھرو پاکستان جتنی بھی بار ایسوسیشن ہے وہ ہماری اس بات سے ایگری ہے کہ یہ 6 کینالز نہیں بننی چاہیے۔ ایک ریگستان کو آپ آباد کرنے کے لیے ایک میدان کو ویران نہیں کر سکتے، اور ابھی تو پورے سندھ سے جو بار ایسوسیشن ہے وہ یہاں پہ جمع ہے۔ کوئی ایسی بار ایسوسیشن یہ سارے جگہوں کے درمیان میں جو اس بات سے ایگری نہیں ہے کہ یہ جو انسا ہے یہ 6 کینالز جو انسی ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ کراچی ملیر بار کا میں جنرل سیکرٹری ہوں، اور ہمارے وکلاء کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے کراچی بیسڈ اور سندھ بیسڈ، اور ہم نے متفق طور پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم کوئی کمپرومائز کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جو آپ یہ نوٹیفیکیشن صدر صاحب نے ایشو کیا ہے اس کو واپس لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں کبھی یقین ہے کہ ہم اپنے مقصد کے کامیاب ہوئے بغیر یہاں واپس نہیں جائیں گے۔ دھرنے کے شرکا کا کہنا ہے کہ 6 نئے کینالز اسکیم آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا فیصلہ واپس لیں، بصورت ہم اپنی احتجاجی تحریک بڑھا دیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہناز منگی، NTN نیوز سکھر۔ رخ کریں گے مٹیاری کا، جہاں دوسرے شہروں کی طرح متنازع کینال منصوبے پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جسکم نے سندھو دریا پر نئی کینالز کے خلاف چھوٹے بڑے شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں علی فیضان کی رپورٹ میں۔ سندھو دریا پر 6 کینال منصوبوں کے خلاف سندھ قومی محاذ مرکز کی کال پر جسکم ضلع مٹیاری کے رہنماؤں شرجیل سالارو، ذوالفقار ڈیتو، شہزاد سمو کی قیادت میں مٹیاری سمیت ضلع بھر کے تمام شہروں مٹیاری، ہالہ، بٹشاہ، سعید آباد سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ شٹر ڈاؤن کے باعث مٹیاری کے تمام کاروباری مراکز، مارکیٹیں مکمل طور پر بند رہی۔ مظاہرین نے قومی شاہراہ بلاک کر دیا، جس سے کئی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ مسافروں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جبکہ ضلع کے دیگر شہروں میں کہیں جزوی تو کہیں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال رہا۔ ٹریفک سڑکوں سے غائب رہی۔ سندھ قومی محاذ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جب تک یہ متنازع 6 کینال کا فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا تب تک ہماری یہ ہڑتال جاری رہے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی فیضان، مٹیاری۔ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان نے کسانوں کے مسائل پر آواز بلند کر دی۔ انہوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ گندم کے حوالے سے کسانوں کے تحفظات دور کیے جائیں، اسٹوریج کے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں فیصل آباد سے نمائندہ NTN نیوز علی حسن صابری۔ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان نے فیصل آباد کے حلقہ N97 کے دورے کے دوران کسانوں، سماجی شخصیات اور علاقہ عمائدین سے ملاقاتیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ملک کا کسان خوشحال ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آئندہ بجٹ میں پسماندہ علاقوں کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ ہمایوں اختر خان کا کہنا تھا کہ وہ حلقہ N97 کے ترقیاتی کاموں کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دلوانے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ دورے کے دوران انہوں نے مختلف افراد کے گھر جا کر وفات پانے والے عزیزوں کے لیے تعزیت بھی کی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسن صابری، NTN نیوز فیصل آباد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی حجرہ شاہ مقیم سجادہ نشین ہاؤس آمد سجادہ نشین سید اعجاز علی گیلانی کے وفات پر ان کے جانشین سجادہ نشین سید اسد علی گیلانی اور سید رضا علی گیلانی سے تعزیت کی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے تنویر احمد شاہین کی اس رپورٹ میں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی حجرہ شاہ مقیم سجادہ نشین ہاؤس میں آمد۔ ان کی آمد پر حجرہ شاہ مقیم میں سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ ان کا استقبال MNA سید رضا علی گیلانی نے سجادہ نشین ہاؤس میں کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سید اعجاز علی گیلانی سجادہ نشین مرحوم کے جانشین سید اسد علی گیلانی، سید مدد علی گیلانی اور سید رضا علی گیلانی MNA سے سید اعجاز علی گیلانی کے وفات پر دعائے مغفرت کی اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دو مختلف خیالات رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اچھی شراکت داری رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بیان اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے تھا۔ نہروں کی شبر جو ہمارے درمیان اختلافات چل رہے ہیں وہ جلد حل ہو جائیں گے۔ حکومت پنجاب کی کسان دوست پالیسیوں کے ثمرات جلد عوام کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں جس میں بیٹھ کر ہم باہم آپس میں بیٹھ کر معاملات حل کر رہے ہیں۔ جلد پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر ہوگی۔ تھانہ سرائے مغل کے نواحی علاقہ کھڈیاں کے قریب سے نوجوان کی لاش برآمد۔ مقتول کی شناخت 34 سالہ یامین کے نام سے ہوئی۔ مقتول کو فائرنگ اور تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں محمد حسیب ہنجارہ سے۔ جی حسیب بتائیے گا۔ جی یہ افسوسناک واقعہ جو ہے تھانہ سرائے مغل کے نواحی علاقہ کھڈیاں چک کی 41 میں پیش ہے، جہاں پر جاگو والا موڑ کے قریب اس نوجوان کو جو بہن سے ملنے آیا تھا قتل کر دیا گیا ہے۔ مقتول کی بیوی کی مدعیت میں تھانہ سرائے مغل پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقتول کی بیوی نے تھانہ سرائے مغل پولیس کو درخواست دیا ہے کہ وہ اپنے خاوند اور دیور کے ہمراہ سواری موٹر سائیکل یامین کی بہن سے ملنے کھڈیاں چک کی 41 آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے خاوند یامین، دیور یاسین اور محمد افضل گھر سے پیدل اپنی زمینی کی طرف جا رہے تھے کہ میرا خاوند یامین کچھ فاصلے پر تھا۔ جب کھڈیاں چک کی 41 جاگو والا موڑ کے قریب پہنچے تو پہلے سے کھڑے دو نامعلوم ملزمان نے اپنے آخری اسلحہ سے 2 فائر مارے جو میرے خاوند یامین کے سر پر لگے۔ فائرنگ کی آواز سن کر ہم بھاگ کر آئے، ہمیں دیکھ کر جو نامعلوم ملزمان سے موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ دیکھا تو میرا خاوند خون میں لت پت پڑا تھا اور وہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ تھانہ سرائے مغل پولیس نے مقتول کی بیوی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور پولیس تھانہ سرائے مغل کے ایس ایچ او سے جب این ٹی این نیوز کی بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی سرکل کی ہدایت پر ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ تانلیہ والا کا سرکاری سلاٹر ہاؤس جہاں سے روزانہ سینکڑوں کلو گوشت شہریوں کو فراہم کیا جاتا ہے، یہاں کی بدترین حالت نے نہ صرف جانوروں بلکہ انسانی صحت کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ رپورٹ کریں نمائندہ این ٹی این نیوز علی حسن صابری۔ تانلیہ والا کا سرکاری سلاٹر ہاؤس جہاں صفائی تو دور پینے کا پانی تک نایاب ہے، بدبو کا ایسا عالم کہ چند لمحے کھڑا رہنا بھی محال ہو جائے۔ یہاں نہ سینیٹائزیشن کا کوئی نظام، نہ ویسٹ مینجمنٹ کی سہولت، ہر طرف حشرات الارض کا راج، اور ایسے ماحول میں ذبح ہوتے ہیں بیمار لاغر جانور۔ مقامی ذرائع کے مطابق بعض اوقات گھروں میں غیر قانونی طور پر ذبح شدہ جانوروں کو بھی اسی سلاٹر ہاؤس کی مہر لگا کر مارکیٹ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ فوڈ اتھارٹی قوانین کے تحت ایسا گوشت انسانی صحت کے لیے زہر قاتل ہے اور یہ جرم قابل سزا بھی ہے۔ شہریوں نے نون لیگی ایم پی اے جعفر علی ہوچا اور قدسیہ بطول سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو اسمبلی میں اجاگر کریں تاکہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر تانلیہ والا نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات اور ممکنہ ایکشن کا اندیا دے دیا ہے، مگر عوام پوچھتی ہے کیا ہم محفوظ گوشت کھا رہے ہیں، اور اگر نہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسن صابری، این ٹی این نیوز، فیصل آباد۔ میاں والی میں دریائے سندھ کے کنارے بیٹھے خانہ بدوش کیلوں کی کہانی ایک خوابناک اور سحر انگیز دنیا سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک وقت تھا کہ یہ لوگ نہ صرف دریا کے پانی سے جڑے ہوئے تھے بلکہ ان کا پورا وجود اس کی لہروں کے سنگ آتا تھا، لیکن اب ان کے حالات کیسے ہیں؟ جانتے ہیں حفیظ اللہ خان نیازی کی اس رپورٹ میں۔ ایک وقت تھا کہ میاں والی میں خانہ بدوش کیل دریا کی گہری نگیل لگون پانیوں میں کشتیوں پر دن بھر مچھلیاں پکڑنے میں مصروف نظر آتے تھے۔ ان کا ایک روزگار دریا کے پانیوں پر انحصار کرتا تھا۔ مچھلی پکڑنا، ان کو بازاروں تک پہنچانا اور دریا کی رو میں اپنا سفر جاری رکھنا ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھا۔ اساں جس ٹائم چھوٹے چھوٹے ہوندے تھے، جس ٹائم پیچھے بیگ تے تسی بچے دیتے پے، اس ٹائم دے اسی تے دریا تے آون لگے سر۔ ہن جس ٹائم دور آندا ویندا اسی آندے وقت بھی ہاں، لیکن او جھگیاں او کیل سانو نظر نہیں آندے۔ ہن وسیل رائے کونی گئے، دریا سک گئے، اگے ساک روزی دریاواں چ لبدی آئی، لیکن ہن ساری روزی رائے نہیں۔ ساڈے جڑے ہن
असां लोग जेड़े हैं शहरां दे नाल बावना चाहने हैं, अपना वसेल जेड़ा है रोजी दा वो पैदा करना चाहने हैं। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा दराज सिंध की सूरत हाल बदल गई। दराज सिंध पर बनने वाले बराज और नहरें जैसे दरा की कुदरती रास्तों को महदूद कर रही थी, इसी तरह इन खाना बदोश की कस्तियों का सफर भी कम हो गया। इनकी रोजगार की बुनियाद जो कभी दरा की मछलियों पर थी, अब वो ठेकेदार के पेचीदे निजाम में गुम हो गई। साडा एक दौर आई, साडा पीर आड़ा इत्थे मच्छियां ना पैंदा आई, साडी मच्छी दा कारोबार आई, साडा टोकरां दा कारोबार आई। अब इन खाना बदोशों की जिंदगी में इस पुरानी कश्तियों की ससराहट की आवाज नहीं आती। इनके पास वो कश्ती नहीं रही जो उन्हें एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते। ये लोग कभी दरिया की लहरों में रश्क करते थे, अब शहरों के अन्य रास्तों पर कदम रखे हुए हैं और इनके चेहरे पर वो माजी की रोशनी नहीं बल्कि एक मदम सी उदासी है। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान नियाज़ी, NTN न्यूज़ मियांवाली। रोजान के नवाही इलाके शाहवाली में गरीब मेहनतकश खानदान सूदखोर के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुतासरीन ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 5,000 रुपए के बदले 15,000 रुपए लेने के बावजूद सूदखोर ने तंग किया हुआ है। मजीद देखते हैं सैयद तैमूर काज़मी की इस रिपोर्ट में। रुझान के नवाही इलाके थाना शाहवाली की हदूद में अवाम सूदखोरों के खिलाफ सरापा एहतजाज। राजनपुर DPO राजनपुर DPO राजनपुर DPO राजनपुर। मुतासरा खानदान के अफजल शाह और दिगर का कहना था कि सूदखोर इफ्तिखार शाह ने हमसे 5,000 के बदले 15,000 रुपये वसूल कर लिए हैं, मगर फिर भी मजीद रकम का तकाजा कर रहा है। हमें इंसाफ फराहम किया जाए। डीपो साहब गुसार मेरी गुजारिश है 5-10 संगने 15,000 मेरे बने जो उम्मीद है ना जायज असल करना पे कानूनी कार्रवाई सख्त थी बने से को इंसाफ मिले वने 5-15 गिदे खड़े सूद कोड़े मेरा इंसाफ थिया उन्हें डीपो साहब अर्ज है मेरा गरीब सयादा साइकिल मोटर चला चला बच्चे दाने इकट्ठे करना वो खावे छोटे कौन हुई कार्रवाई करो सर। मेरा अर्ज है साहब, अल्लाह से को तरक्की जैसे डिपो साहब हक के। पुलिस को चाहिए कि शफाफ इंक्वायरी करके मुतासरीन को इंसाफ फराहम करे ताकि हक को इंसाफ का बोलबाला हो सके। कैमरा टीम के साथ सैयद तैमूर काज़मी, NTN न्यूज़ रोजान। लाहौर में डिप्टी DS रेलवे फातिमा बिलाल ने वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की हिदायत जीरो टॉलरेंस पर अमल करते हुए एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया। महमूद बूटी रिंग रोड पर कब्जा माफिया के दौड़े लगवा दी। देखते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद की रिपोर्ट। और डिप्टी DS रेलवे फातिमा बिलाल ने वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की हिदायत जीरो टॉलरेंस पर अमल करते हुए एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया और दबंग कार्रवाई करते हुए महमूद बुटी रिंग रोड पर कब्जा माफिया की दौड़ें भी लगवा दी और कब्जा माफिया से रेलवे की 50 अरब की अराजी को वारगुजार करवा लिया। जबकि इस एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन को डिप्टी डिवीजन सुपरिटेंडेंट रेलवे फातिमा बिलाल ने अपनी निगरानी में करवाया और ऑपरेशन के दौरान रेलवे की 25 एकड़ जमीन वागुजार करवाई, जिस पर एक हाउसिंग सोसाइटी, 5 फैक्ट्रियां, 7 मार्केटें, 2 पेट्रोल पंप्स बने हुए थे और इन प्रॉपर्टी को वागुजार करवाने के बाद तमाम प्रॉपर्टी को मौका पर ही सील कर दिया गया। ऑपरेशन के मौका पर फातिमा बिलाल का कहना था कि वागुजार कराई गई रेलवे की प्रॉपर्टीज की आइंदा नीलामी करवाई जाएगी, जिससे पाकिस्तान रेलवे को सालाना 4 अरब रुपए की आमदन मुतवक्का हो सकती है। इसके अलावा डिप्टी DS रेलवे फातिमा बिलाल का कहना था कि रेलवे की अराजी पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि रेलवे अराज कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा ऑपरेशन की कामयाबी पर वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जानिब से DS रेलवे, डिप्टी DS रेलवे और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा भी गया और वफाकी वजीर रेलवे की जानिब से शाबाश भी दी गई। कैमरा टीम के हमरा गौहर सईद, NTN न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम असिस्टेंट कमिश्नर लालिया डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद की सरबराही में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। शहर की मुख्तलिफ बाजारों से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। देखते हैं बिलाल भड़ाइच की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साफ सुथरा पंजाब विजन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लालिया डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद की सरबराही में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शहर के मुख्तलिफ बाजारों से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। AC लालिया डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद ने चिनाब नगर के साइवा रोड समेत मुख्तलिफ बाजारों से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। दुकानों के आगे बनाए गए गैर कानूनी बरामदे और लगाए गए शेड उतार दिए गए। इस मौका पर AC लालिया डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद ने कहा कि शहर भर में बिला तफरीक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और ये कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर जारी रखेंगे। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चिनाब नगर।
बिहाड़ी के नवाही इलाका शेख फाजिल में गर्मी से सताया हुआ 13 साला बच्चा ट्यूबवेल पर नहाते हुए कत्ल हो गया। ट्यूबवेल मालिक तारिक ने बच्चे को ट्यूबवेल में नहाने से मना किया, लेकिन मोहम्मद जकी फिर भी नहाता रहा, जिस पर ट्यूबवेल मालिक तारिक ने फायर मारकर जकी को कत्ल कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुसद्दिक चौधरी से। जी मुसद्दिक, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। जी, अफसोसनाक वाक़या बिहाड़ी के नवाई इलाका शेख फाजिल 429 ईबी में पेश आया, जहाँ शदीद गर्मी से सताया हुआ अजीमाबाद का रिहायशी 13 साला बच्चा मोहम्मद जकी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ट्यूबवेल पर नहाने चला गया। जकी ट्यूबवेल पर नहा रहा था कि ट्यूबवेल के मालिक तारिक ने नहाने से मना किया, लेकिन जकी फिर भी नहाता रहा, जिस पर ट्यूबवेल मालिक तारिक गुस्से में आ गया और बच्चे को फायर मारकर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही डीपीओ बिहाड़ी फरूक कमियाना मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने मुलजम तारिक को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया। गजा में होने वाली रियासती दहशतगर्दी और फलस्तीनी नस्लकुशी के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी भी सरापा एहतजाज है। बहावल नगर प्रेस क्लब की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तफसील बता रहे हैं रैली में मौजूद वसीम अख्तर ने कहा। जी बिल्कुल, इसराइल की जानिब से गजा पर ढाए जाने वाले जालिम के खिलाफ आज बहावल नगर प्रेस क्लब की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रफीक शाह चौक में, मेरे साथ जो है मुजाहिरीन मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं कि उनका आज के एहतजाज के हवाले से क्या कहना है। जी सर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज का हमारा एहतजाज ये मकसद इसका यही अव्वलीन है कि हम हुकूमत पाकिस्तान को अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें कि पाकिस्तानी हुकूमत इस मामले में अब आगे बढ़े और ये जो सिलसिला जुल्म जबर का ये चल रहा है और जो नस्लकुशी की जा रही है फ़लस्तीनी भाइयों की, उसका रुकवाने के लिए कोई अमली इकदाम किया जाए, जिसमें तमाम मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया जाए और फौरी तौर पर जो इसके बारे में लाएमल का इख्तियार किया जाए ताकि जो ये सिलसिला है इसको बंद किया जा सके। अच्छा, बिल्कुल यही कहेंगे कि आलमी जो सतह है वहाँ पर फ़लस्तीनियों की आवाज़ को बुलंद करना इसका मकसद है। और दूसरा बड़ा मकसद ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो खामोश है। जो आलमी दहशतगर्द है इसराइल, वो दहशत गर्दी कर रहा है और नस्ल खुशी कर रहा है फ़लस्तीनियों की। हस्पताल गिराए जा रहे हैं, पानी बंद किया जा रहा है, खुराक बंद की जा रही है, मुसलमानों पर ऐसा जुल्म किया जा रहा है जो तारीख में पहले नज़र नहीं आता है। तो बहावल नगर प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ियों का यही मुतालबा है कि फ़लस्तीन में होने वाले जितने भी मुजालिम हैं उन्हें ख़त्म किया जाए और मुस्लिम उम्मा जो है वो एक आवाज़ बनकर आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों की आवाज़ बने। जैसा कि आपने मुजाहिरीन की बात सुनी, मुजाहिरीन ने कहा है कि हमारा मुतालबा हुकूमत वक्त से ये है कि फ़लस्तीन पर जो ढाए जा रहे इसराइल की जानिब से ज़ालिम है उनको फिलफौर बंद किया जाए और जो है इनके खिलाफ जो है वो इसराइल के खिलाफ जो है करारदाद पेश की जाए, जिसमें जो है वो मुकम्मल तौर पर इन पर पाबंदी आयद की जाए। जी, सलावाली और गिरदनवा में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप जगह जगह कायम है। गैर मेयारी डीजल और पेट्रोल की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। सलावाली से मोहम्मद हनीफ कलियार की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, सिलावाली और गिरदनवा इलाका जात में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां जो हैं वो जगह जगह कायम हो चुकी हैं। इन गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों पर ईरानी डीजल और पेट्रोल की फरोख्त और पैमाना में कमी जो है वो धड़ल्ले से जारी है। गैर मेयारी डीजल और पेट्रोल की वजह से लाखों रुपए की गाड़ियां जो हैं वो उनके इंजन तबाह हो चुके हैं, जबकि मकामी इंतजामिया की खामोशी जो है वो लम्हा फिक्रिया है। इलाका की अवाम ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली तारिक महमूद से मुतालबा किया है कि इन गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और गैर मेयारी डीजल और पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़, सिलावाली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के बावजूद जहानिया में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल नाकाम हो चुका है। रेडियो और पट्टा माफियाज की वजह से जहानिया के बाजार सुकड़ कर रह चुके हैं। मजीद बता रहे हैं चौधरी इमरान अली अपनी इस रिपोर्ट में। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जहानिया में नाकामी की तरफ गामज़न है। जहानिया में ऑपरेशन के बाद जगह जगह रेडी माफिया, फट्टा माफिया ने कब्ज़ा कर लिया है और जहानिया के बाज़ार सुकड़ कर रह गए हैं। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बावजूद जहानिया में नजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन मुअस्सर ना हो सका। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, कुछ रोज़ कबल नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ इंतज़ामिया इस तरह से ऑपरेशन कर रही थी जैसे शहर भर में पता नहीं सफाया हो जाएगा, मगर ये ऑपरेशन फ़ोटो सेशन के लिए 2-4 दिन तक चला है। अब हर जगह फट्टा माफिया, रेडियो माफिया का कब्ज़ा है। 112 वाले फाटक के करीब, ज़फ़रुल्लाह चौक, बाईपास, सदर बाज़ार, अल्लाहदाद बाज़ार में यहाँ से शाम के टाइम गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। इंतज़ामिया को चाहिए कि फ़ौरी जो फट्टा माफिया, रेडियो माफिया, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ताकि हमारे गुजरने के लिए जो रास्ता है कम से कम वो तो बच सके।
जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि इंतज़ामिया को फट्टा माफिया के ख़िलाफ़ और नाजायज़ तजावज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन मौसर करना चाहिए ताकि शहरियों के लिए गुजरने के लिए आसानियाँ हो सकें। जी। चिन्योट में इंतजामिया बेनज़ीर सेंटर पर ख़वातीन को बेहतर सहूलियात फराहम करने में मुतहरिक, बेहतर सिक्योरिटी और बगैर कटौती रकम फराहम की जा रही है। मज़ीद क्या सहूलियात दी जा रही हैं, हमारे नुमाइंदे कैसर विनस से जान लेते हैं। जी कैसर। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चिन्योट हॉकी स्टेडियम बेनज़ीर सेंटर पर, जहाँ पर जो है इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे ख़वातीन को जो है बेनज़ीर की किस्त जो है फराहम की जा रही है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले और इंतज़ामात के हवाले से, तो हमारे साथ खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहती है। जी बताइएगा, आप यहाँ पे पैसे लेने के लिए आए हैं, यहाँ पे कैसे इंतज़ामात किए गए और पैसे किस तरह मिल रहे हैं? बहुत अच्छे मिल रहे हैं, कोई दार नहीं, कोई फरेब नहीं, माशाल्लाह सर बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं, कोई मसला नहीं, ये सिफारिश नहीं है, पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। कटौती के लिहाज से आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे कटौती कर रहे हैं और पानी वगैरह या सहूलियात दी जा रही हैं? जी सब कुछ है, कटौती नहीं कर रहे, बहुत अच्छे सर पैसे दे रहे हैं, कोई कटौती नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई मुश्किलात तो सामने आपको नहीं पेश आ रही? जी नहीं, कोई भी नहीं है, पानी भी है, सब कुछ है, बहुत अच्छा, छाँव भी है। जी बिल्कुल, खातून का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से जो बेनज़ीर सेंटर पर जो है तमाम तर खवातीन को सहूलियात फराहम की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब यहाँ पे ना ही कटौती की जा रही है, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात है और खवातीन को जो है आसानी तौर पर रकम जो फराहम की जा रही है। जी। अहमदपुर सयाल में आलमी महफिल हुस्न क़िरात का इनेकाद किया गया। मदरसा अरबिया शमसिया फ़ख्रुल मदारिस के ज़ेर एहतमाम कारी सैयद महमूद अली शाह की निगरानी में तकरीब का एहतमाम किया गया। देखते हैं मलिक हफीज़ुर रहमान खोकर की रिपोर्ट। मदरसा अरबिया शमसिया फ़ख्रुल मदारिस अहमदपुर सयाल के ज़ेर एहतमाम कारी सैयद सिद्दीक अली शाह की काविशों से जामे मस्जिद अल मुहम्मद अमीर टाउन अहमदपुर सयाल में आलमी महफिल हुस्न क़िरात ज़ेर निगरानी मोहतरम मदरसा कारी सैयद महमूद अली शाह मुनक्किद हुई। या नबी सलाम सदारत मौलाना सैयद फ़खरुद्दहर शाह ने की। मिस्र के मारूफ कारी शेख अहमद मोहम्मद नईम ने अपनी मशहूर कुन आवाज में तिलावत कलामुल्लाह पेश करके हाजरीन महफिल के कुलूब व अज़हान को नूर ईमानी से मुनव्वर किया। इस मौका पर खिताब करते हुए मौलाना सैयद ज़ियाउल हसन, सैयद मोहसिनुल हसन और मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी ने कहा कि कुरान वो किताब है जो दरसे इनकलाब है और कुरान ऐसी किताब है कि जिससे अगर हम इसके जरिए से अपनी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज करना चाहें तो अल्लाह ने इसके अंदर इलाज भी रखा ते जेड़ा भी इस कुरान मजीद ते गलबा पावन वास्ते आया अल्लाह ने मगलूब कर दिता है, कुरान ते गलबा नहीं पा सकिया। इख्तिताम पर मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और फलस्तीनी अवाम के लिए दुआ भी मांगी गई। या मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज, अहमदपुर सयाल। आज के जदीद दौर में भी मिट्टी के बर्तन बहुत अहमियत रखते हैं। मिट्टी से बनी कढ़ाई, पानी के कूलर, मटके, ग्लास वगैरह में खाने पीने का मजा बहुत उम्दा होता है। मजीद जानते हैं नदीम अकरम खान की से। जी मैं नदीम बताइएगा। जी बिल्कुल, इसे मौजूद सात काबाल में जहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। आजकल मिट्टी के बर्तन का बहुत रुझान है, तो मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी जनाब आप बताएं कि आप ये किस तरह बनाते हैं और इसकी मांग में क्या इजाफा हो या कमी हुई है? आप सबको हमारी तरफ से और हमारे यहाँ मिट्टी के टोटल बर्तन मौजूद है और ये हैंडमेड है टोटल और बहुत अच्छे हैं और हमारे पास हर किस्म की वैरायटी दस्तियाब है और आजकल इनकी बहुत डिमांड हो रही है, ख़ुसूसन ये जो कढ़ाई है इसकी बहुत डिमांड हो रही है। जैसे कि आपने दुकानदार की बात सुनी, इनका कहना है कि आज कल जो है मिट्टी के बर्तनों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है और लोग आते हैं खरीदते हैं। जैसे जो है यहाँ मिट्टी के कूलर, मिट्टी की कढ़ाई और मिट्टी की बहुत सी चीज़ें बनी है, मटके बने हुए हैं और इनमें खाने का मज़ा ही अपना है। जी मियांवारी में मौसम गर्मा शुरू होते ही ऐनकों की मांग में इजाफा हो गया। ऐनक जहां इंसान की शख्सियत में निखार पैदा करती है, वहीं पर गर्मी और धूप से बचाव का जरिया भी है। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान न्यासी। गर्मियों के मौसम में मियांवाली के शहरी जहां ऐनक पहनना पसंद करते हैं, वहीं पर जोड़े पर काले शीशे वाली ऐनक इंसानी निखार को चार चांद लगा देती है। जिवें कि तुहानू मालूम है गर्मी का मौसम शुरू हो गया और असा ये बच्चे वास्ते मैं ऐनक की और अपने वास्ते भी ऐनक गिनदा पिया। ये ऐनक दे बहुत ज़्यादा फायदे ने। सब तो ज़्यादा जो फायदा है, सब तो अच्छा वो गर्मी दे विच बंदा गर्मी तो बचता और दूसरा आजकल सीजन है गांगियां दा, मच्छर दा, अखा च वैंदियां ने
रोड एक्सीडेंट होंदे ने मोटरसाइकिल चलती जगह ते आके वञे तो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट थी वञण दा खतरा होंदा। वैसे तो एन के मुख्तलिफ डिज़ाइन और मुख्तलिफ कलर में होती हैं, लेकिन मियाँ वाली के शहरी एनक जूते और कपड़े मज़े के साथ खरीदना पसंद करते हैं, जो इंसानी खूबसूरती में इजाफा करती है। इस एनक के बड़े फायदे हैं जी। बंदा मोटरसाइकिल चढ़ा हुआ होंदा है, गांगियां अखियां चाह लगदी हैं, इसी बचत हो वैंदी है। दूजा धुप अखियां च लगदी है, तेज़ गर्मी की धुप होंदी है, वो सस्ती है, अच्छी चीज़ है। जहाँ एन के गर्मी से बचाव का जरिया है, वहीं पर दौरान ड्राइविंग मच्छर मक्खी और गुर्द गुबार से भी बचाती है। एनक पर शायद एक गीत भी लिखा है, गोरे गोरे बुखरे पे काला काला चश्मा। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान याजी, NTN न्यूज़ मियाँ वाली। कमालिया में गर्मियों की आमद के साथ ही तरबूज के स्टॉल सज गए। माहिरीन सेहत के मुताबिक तरबूज इंतहाई सस्ता फल होने के साथ साथ जिस्मानी सेहत के लिए निहायत फायदेमंद है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। तरबूज कुदरत का पैदा करदा बेहतरीन फल है, जिसे गर्मियों में शहरी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही रोड के अतराफ में तरबूज के स्टॉल सज जाते हैं। रेडी बांध तरबूज को काट कर बर्फ में लगा देते हैं और आने जाने वाले शहरी इसको देखकर खाए बिना नहीं रह सकते। तरबूज एक बेहतरीन गज़ा है। तरबूज ग़िज़ाइयत से भरपूर है। तरबूज पट्ठों के निज़ाम को मजबूत करता है। तरबूज जिस्म के नमकियात को कंट्रोल करता है, चर्बी को कम करने में मुआवन साबित होता है। तरबूज के बीज भी फायदेमंद है। तरबूज का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत करता है। तरबूज भाई बहुत अच्छी चीज़ है मैदे वास्ते। इसको भाईजान बहुत अच्छे तरीके से लोग पसंद करते हैं और खाया करते हैं, क्योंकि इसका इंसान को बहुत फायदा होता है। बहुत अच्छा फल है। कुदरत का ये बेहतरीन अनमोल तोहफा अपने अंदर ढेरों फायदे छुपाए हुए है। माहिरीन सेहत के मुताबिक तरबूज में 92% पानी होता है, जो कि इंसानी जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है और हाजमे के निजाम को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। लाल लाल तरबूज शहरी शौक से खरीदते हैं और खुद भी खाना पसंद करते हैं और बच्चों के लिए भी लेकर जाते हैं। ये फल इंतहाई सस्ता है, लेकिन अपने अंदर ढेरों फायदे छुपाए हुए है। इसे माहिरीन सेहत गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा भी देते हैं। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, कमालिया। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।